اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ المطففین کا مطالعہ کریں گے۔ نزول کے لحاظ سے سورہ المطففین 86ویں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ 83ویں سورہ ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی 36 آیات ہیں اور سورت کا نام اس کی پہلی آیت کے لفظ للمطففین جو ہے اس سے ماخوذ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، وائے افسوس ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ ان الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ ماپ لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ماپ دیتے ہیں انہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں انہیں تو کم دیتے ہیں۔ للمطففین، اس کا روٹ ہے تفف، فے نہ تمام دینے والے، یا انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں who give less۔ تففس کا جو ایک لفظی مفہوم ہے وہ کسی برتن کے بھرنے میں جس قدر کمی رہ جائے اس کے لیے تفف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں پیمانے کو پورا نہ بھرنا۔ اور بعض کا اس کا مفہوم تھوڑی، نامکمل یا کوئی ناقص چیز کسی کو دینے جبکہ دام اس سے پورے کے پورے لینے کے۔ اب پہلی آیت کے بعد جو اگلی دو آیتیں آیت نمبر 2 اور 3 وہ اسی بات کی تشریح کر رہی ہیں کہ مطففین وہ لوگ ہیں کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورے کا پورا، وزن کے لحاظ سے پورا، ناپ کے لحاظ سے پورا، اور جب دینا ہوتا ہے تو یا ناپ میں کمی کر دیتے ہیں یا تول میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک ایسے معاشرے کی عکاسی ہے جس میں نظام زندگی کا انداز یہ ہے کہ جو بھی کوئی صاحب اثر ہیں یا جن کے ساتھ لوگوں کا لینے اور دینے کا واسطہ پڑتا ہے وہ دوسروں کی جو محنت ہے اس کا پورا معاوضہ ادا نہیں کرتے، اور جو ان کی محنت کی کمائی ہے اسے اپنی ذات کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں سے کام پورا لیتے ہیں لیکن انہیں اس کا پورا معاوضہ ادا نہیں کرتے۔ اور اسی کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جب کوئی آدمی جو اس کے اپنے ذمہ فرائض ہیں وہ پورے نہ ادا کرے اور معاوضہ پورے کا پورا لے، اس حوالے سے وہ سارے ملازمین، خواہ وہ کسی سرکاری حیثیت میں کام کر رہے ہیں، نیم سرکاری ادارے میں کام کر رہے ہیں، یا انڈیویجول بیسس پہ کر رہے ہیں، یا پرائیویٹ کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، کہ جو ان کے ذمہ کام ہیں اس میں تو ڈنڈی مارتے ہیں، میرا تنخواہ پوری کی پوری، اس میں کوئی کمی بیشی جو ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حوالے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوسروں سے ایک بڑی عزت کے اور تکریم کا مطالبہ کریں، جبکہ جب خود ہماری باری آتی ہے تو ہم دوسروں کو جو ان کا جائز مقام اور عزت بنتی ہے ہم وہ بھی نہ دیں اور اس میں کمی کریں، تو یہ بھی مطففین کی کیٹیگری میں ہی آ جاتا ہے۔ اب جب کسی معاشرے میں اس طرح کی افسوسناک طرزیں جو ہیں وہ فروغ پائیں گی تو پھر اس کا انجام ویل، یعنی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، تو کیا وہ نہیں گمان رکھتے کہ انہیں مبعوث ہونا ہے لیوم عظیم، ایک عظیم روز کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس روز کھڑے ہوں گے رب العالمین کے لیے۔
यजुन्न जनन से बना, या जन जैसे हम कहते हैं, गुमान किए हुए हैं। दे अज्यूम कि ऐसा लगता है कि ऐसी हरकतें करने वाले लोगों को इस बात का यकीन ही नहीं कि उन्हें एक दिन उठा खड़ा किया जाएगा, रब्बे करीम के हजूर पेश होना होगा और कवानीन अलैया के मुताबिक हर किसी को उसके हर अमल का पूरा पूरा बदला मिलेगा। अब ये बात हम लोग अपनी ज़बान से तो कहते हैं, लेकिन अगर इसका यकीन हमारे दिलों में उतरा हुआ हो तो गलत काम कैसे कर सकते हैं। हकीकत तो ये है कि ज़बान से जो हम इतने लंबे चौड़े दावे करते हैं, हम अमलन उसी बात की नफी करते हैं। कल्ला इन्ना किताबुल फुज्जारे लफी सिज्जीन, हरगिज़ नहीं, बेशक दस्तावेज फुज्जार की सिज्जीन में है। मा अदराका मा सिज्जीन, क्या तुमने जाना सिज्जीन क्या है? किताबुम मरकूम, एक दस्तावेज रकम की हुई। वैलुई यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़बीन, वाय अफसोस इस रोज को जुटलाने वालों के लिए। सिज्जीन सजन से बना, सजन का जो आमतौर पे ट्रांसलेशन की जाती है वो है जेल या कैद खाना, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कोई इंतहाई कम दर्जे की जगह या कोई इंतहाई कम दर्जे का ठिकाना। प्रिजन आर अ वेरी लो ग्रेड प्लेस। मरकूम रकम की हुई, लिखी हुई, रिटन और इंस्क्राइब्ड। और जब हम पूरा इसको करते हैं किताब मरकूम, तो इससे बनता है कोई एक रिकॉर्ड, कोई एक डॉक्यूमेंट या एक डॉक्यूमेंट्री। आयत नंबर 8, आप क्या समझे कि असफल जिंदगी क्या है, सिज्जीन क्या है, एक लो ग्रेड जिंदगी क्या है? और आयत नंबर 9 इसी का जवाब है कि ये तो एक रिकॉर्ड है, और ये वो रिकॉर्ड है जो तुम्हारे ही अमाल से मुरतब हुआ है। दर हकीकत इंसान दुनिया में जो कुछ भी करता है वो एक फिल्म की सूरत में रिकॉर्ड हो जाता है। इस फिल्म की हकीकत को समझने के लिए जरूरी है कि हम अपने जहन में ये रखें कि हमारा ख्याल, हमारा तसव्वुर, हमारी हर एक हरकत और हमारा हर एक अमल एक शक्ल रखता है। हम जो काम भी करते हैं वह हमारे अपने ही इल्म के दायरे में उसकी एक फिल्म बन जाती है। इस तरह हर अमल की फिल्म बंदी होती जाती है। तो मरने के बाद इंसान इस फिल्म को देखेगा, या हम जरूर कह सकते हैं कि कोई ऐसा इंतजाम किया जाएगा कि उसको यह फिल्म दिखाई जाए। अब एक दौलत परस्त जो है या जो सरमायादार है वो देखेगा कि मैं एक अमीर आदमी हूं, मेरे पास बहुत सरमाया है, और वो ये भी देखेगा कि मैं लोगों के ऊपर ज्यादती कर रहा हूं, अवाम की जिंदगी मैंने महाल कर रखी है, मेरी वजह से लोग भूख और अफलास का शिकार हैं, मेरी वजह से लोग परेशानियों में मुब्तला हैं। तो फिल वाकया मैं ही उनकी तकलीफों और परेशानियों का जिम्मेदार हूं, और इंसाफ का तकाजा यह है कि जिस तरह मैं लोगों की तकलीफों और परेशानियों का सबब बना हूं, तो मुझे भी ऐसी ही परेशानी और तकलीफें उठाना हो। अब जैसे ये ख्याल आएगा, वो खुद को फिल्म में एक मुफलस, कलाश, परेशान हाल और मुस्तरिब हालत में देखे, चीखेगा, चिल्लाएगा और कर्बनाक हालत में इधर से उधर चक्कर लगाएगा, लेकिन कोई भी उसका पुरसाने हाल नहीं होगा। अब जो लोग इस हकीकत को बुढ़ाकर अपनी मन मर्जियों में गुम हैं, उनके लिए स्वय तबाही और बर्बादी के कुछ भी नहीं है। अल्लाज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, जो तकजीब करते हैं यौमिद्दीन की, वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुहतदिन असीम, और नहीं तकजीब करता इसकी मगर हर अदावत रखने वाला गुनाहगार। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना काला असातीरुल अव्वलीन, जब तलावत की जाती है उस पर हमारी आयात, कहता है ये तो कहानियां हैं पहलों की। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हर किस नहीं बल्कि जंग चढ़ा हुआ है उनके दिलों पे जो कसब वो कर रहे हैं।
मोतदिन, इसका रूट है अदौ, एन दाल वाव, रंजिश या दुश्मनी रखने वाला। अब इसे एनिमी कह सकते हैं, लेकिन इसका बुनियादी मफहूम जो इंग्लिश में है वो है वेज। उर्दू में हम कहते हैं फाना। जब आप उसे लकड़ी में ठोकते हैं तो लकड़ी को 2 टुकड़े कर देता है। अपोनेंट, डिवाइडर, ग्रजिंग, और इसी में मुखालफ, तकसीम करना, ये सारे मीनिंग जो हैं अदू में आ जाते हैं। और दूसरा जो लफ्ज़ है रान, तो ये बेसिकली लफ्ज़ है रैन, रे ये नू, जंग या दागों से भरे होना। रस्ट भी आप कह सकते हैं, और समथिंग विच इज कवर्ड बाई स्टेन। रान से मुराद या रैन से मुराद वो जंग है जो किसी भी साफ चीज पे चढ़ जाए, या बाज़ औक़ात किसी चीज पे जो बुरी तरह से मैल कुचाल चढ़ा होता है और वो चीज अपनी असल हालत में नजर ही नहीं आती, उसको भी रैन ही कहा जाता है। और कुछ जो लिंग्विस्टिक या आप ज़बानदान कह लें, उनके नज़दीक इससे मुराद किसी शख्स की वो हालत है जब उसकी नफसानी ख्वाहिशात उसके दिल के ऊपर पूरी तरह छा जाती हैं, या आदमी किसी ऐसे मखमसे में गिरफ्तार हो जाता है कि वो बजाते खुद इससे निकल ही नहीं सकता। इब्न फारिस के मुताबिक इसके बुनियादी मायने ढांक लेने के हैं या ढांकने के हैं। अब इस लिहाज से आयत नंबर जो 14 है, इसका मफहूम कुछ इस तरीके से बनता है कि उनके कसब उनके दिलों पर जंग बन के छा गए हैं। अब जो शख्स इस हकीकत को जुटलाता है कि उसे मरने के बाद अपना असाब किताब को देना ही नहीं है, तो जब उसके सामने कुरान करीम से दलाइल रोशन जो है, जो आयतें हैं, निशानियां हैं, वो पेश की जाती हैं, वो ये कह के उसकी तकजीब करता है कि ये तो पुराने किस्से कहानियां हैं, मौजूदा हालत से या मौजूदा ज़माने से इसका क्या ताल्लुक है। तो ये तर्ज अमल इस बात का सबूत है कि ऐसे लोगों के दिलों पे मुफाद परस्ती का जंग चढ़ गया हुआ है। गौर करें, ये जंग कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि इंसान के अपने ही जो बुरे कसब हैं वो जंग बन के दिल पे छा जाते हैं। तो आस्ता आस्ता दिल का आईना धुंधला पड़ता जाता है, मजीद धुंधला पड़ता है, उसके मजीद दाग लगते जाते हैं, और एक हालत ऐसी आ जाती है कि आईना, दिल का आईना बिल्कुल अंधा हो जाता है। अब ये अंधा दिल है, ये हकीकत से नाआशना रहता है, इसमें सोचने समझने की सलाहियतें सल्ब हो जाती हैं, और वो सिर्फ सती जज्बात में ऐसा डूबता है कि गौर व फिक्र के रास्ते उस पर बंद हो जाते। कल्ला इन्नहुम अर्रब्बिहिम, कल्ला इन्नहुम अर्रब्बिहिम यौमइज़िल्ला महजूबून, हरगिज़ नहीं, बेशक वो अपने रब के बारे में आज हिजाब में पड़े हुए हैं। सुम्मा इन्नहुम लस्वालुल जहीम, फिर जरूर ये वासिले जहीम होंगे। सुम्मा युकालो हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, फिर कहा जाता है ये है वो जिसकी तुम तकज़ीब करते रहे। ला महजूबून, हजब, जरूर पर्दे में, शोर या पार्टीशन, ला स्वालू, सली से बना, जरूर मुंसलिक किए जाएंगे या जरूर झोंके जाएंगे, शैल बी लिंक्ड और अटैच्ड। अब दिलों पे ज़ारे होने की वजह से इन लोगों की निगाहों पे ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि वो अपने रब की हकीकत से बेखबर रहते हैं। ना सिर्फ अपने रब के अहकामात से लापरवाही करते हैं, बल्कि उसके मखलूक की बढ़ाई के लिए भी कोई कदम नहीं उठाते। दर हकीकत वो अपनी जिंदगियों में अपने रब का जो जायज मकाम है वो नहीं देते। इस तर्ज अमल का नतीजा ये है कि उन्हें अपने अमाल की बदौलत वासिल जहीम होना है। कल्ला इन्ना किताब अबरार लफी इल्लीजीन, हरगिज़ नहीं, बेशक दस्तावेज अबरार की इल्लीजीन में है। वमा अदराका मा इल्लीशून, और क्या तुमने जाना इल्लीजीन क्या है? किताब मरकूम, एक दस्तावेज लिखी हुई, यशहदुहुल मुकर्रबून, उसका मुशाहिदा करते हैं मुकर्रबीन।
इल्लीजीन अल्लाह से बना, आला मकाम, एक बेहतरीन जगह, और ये सिज्जीन का मुखालिफ है। इन आयात में आला तर्द जिंदगी के जो हमल लोग हैं उनका तज़किरा किया गया है कि उन्होंने अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों को, अल्लाह ताला के दिए हुए वसाइल को जब अल्लाह ताला के अहकामात के तहत रहते हुए इस्तेमाल किया, अपनी ज़ात की नशो नमा की और मखलूक खुदा की खिदमत की, उनका रिकॉर्ड ज़िंदगी जो है वो आला कारकर्दगी का एक बेहतरीन नमूना है। और क्यों ना हो, जो शख्स भी अपने अंदर जिस कदर सफ़ाते रबी का अक्स मुनक्कस कर लेता है वो इतने ही आला दर्जात पा लेता है। इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक अबरार तो नेमतों में है। अलल अराइक यंज़ुरून, मसंदों पे बैठे नज़ारे कर रहे हैं। तारिफु फी वजूहिम नज़रतन नईम, तुम पहचान सकते हो उनके चेहरों पे तरोताज़गी नेमतों की। युस्क़ौ मिन रहीक़ मख़्तूम, पिलाया जाता है उन्हें रहीक़ मख़्तूम से। अल अराइक, अरक से बना, अल फ़रीक़ा, तख्त या मसैरी, काउचेस, थ्रोन, और बात का आप इवन सोफे का मीनिंग जो है वो भी ले सकते हैं। नजराता, नजर, चमकते हुए, रेडिएंट, ग्लोइंग। रहीक, रहक से बना, रहीक से मुराद होता है कोई उम्दा खुशबू वाली चीज या कोई बेहतरीन मशरूब जिसका जायका भी बहुत बेहतरीन हो और जिसकी जो फ्रेगरेंस है, जो खुशबू है, वो भी बहुत बेहतरीन हो। ये लफ्ज ऐसी शराब के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें किसी तरह की कोई आमेज़श शामिल ना हो। इस जोहद से आप हर एक खालस और बेहतरीन चीज को भी रहीक कह सकते हैं। अब इन आयात में कुरान करीम में अहले जन्नत के सिलसिले में रहीकुम मखतूम की इस्तिलाह इस्तेमाल की है, यानी खालस मोहर बंद मशरूब, जिसे इस तरीके से महफूज किया गया है कि उसमें किसी चीज की आमेज़श का अमकान ही नहीं रह गया। इस लिहाज से रहीक मखतूम से मुराद जिंदगी की पाकीज़ा और सरूर अंगेज खुशगवारियां हैं जिनमें किसी खौफ, दुख और गम का शायबा तक ना हो। अब जब नेक सिफ्त लोग जो हैं अपने अमाल की फिल्म देखते हैं तो अपनी नेक निकती, पाकीज़ा ख्यालात और आला अमाल के जो नताइज हैं उनको देख के इत्मीनान और सुकून उनके दिलों में ऐसे घर कर लेता है, उसकी झलक उनके चेहरों पे वाज़े तौर पे नजर आने लग जाती। खितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, उसकी मोहर मिस्क की है और इसी के लिए चाहिए कि नफूस बाजी ले जाए। वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम, और उसकी आमेज़श तस्नीम से है। है नहीं यशरब बिहल मुकर्रबून, एक चश्मा है, पीते हैं इससे मुकर्रबीन। मिस्क, मीम सीन काफ से बना, कस्तूरी, या कोई भी तेज और देर तक रहने वाली खुशबू, और इंग्लिश में आप इसे कहते हैं मस्क। फल जाता नाफा से, चाहिए कि लोग पाने की आरजू और कोशिश करें। लेट एस्पायर। तस्नीम, इसका रूट है सनम, सीन नून मीम। इसका लफ्जी मफहूम एक बुलंद पौधा जिस पे बड़े खूबसूरत फूल लगे हुए हों, या बाज़ औक़ात इससे कोई बर्तन भी लिया जाता है जिसे इस तरीके से भर दिया जाए कि इसमें जो डाली गई चीज है वो बाहर निकल आए। मसलन जैसे एक गंदम के लिए जो पैमाना आप इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप गंदम उसमें खूब भरेंगे तो कुछ हिस्सा जो है वो उसके किनारों से बाहर आपको नजर आएगा। तो इस हालत को भी, या किनारों से एक ऊंचा होने की हालत है, इसे भी तस्नीम कहा जाता है। बाहर जो लिंग्विस्टिक हैं या बाहर जबानदान हैं, उनके नज़दीक हर शय का जो एक बुलंद और जो बेहतरीन हिस्सा है उसे तस्नीम कहा जाता है। अब कुरान करीम में यह लफ्ज़ सिर्फ एक दफ़ा आया है, और वो ये जो आयत नंबर 27 अल मुतफ़्फ़िफ़ीन की आपके सामने है, सिर्फ इसमें है। और अगली ही आयत जो आयत नंबर 28 है वो इसी बात की तशरीह कर रही है, और इन अल्फाज में कि ए नहीं यशरबो बिहल मुकर्रबो,
ایسا چشمہ ہے جس سے مقربین پیتے ہیں۔ اس میں بلندیوں، رفتوں اور اعلیٰ درجات کا مفہوم موجود ہے۔ ان الذین کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک جو مجرم ہیں وہ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اور اب بھی اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ یتغامزون، اور جب بھی گزرتے ان کے پاس سے آنکھوں سے اشارے کرتے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ منقلبوا فَكِهِينَ، اور جب پلٹتے اپنے اہل کو پلٹتے مزے لیتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو وہ کہتے بے شک یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اجرموا، جرم سے بنا جنہوں نے جرائم کیے، committed crimes۔ یتغامزون، اس کا روٹ ہے غمز، وہ ایک دوسرے کو کنکھیوں اشارے کرتے۔ they winked at one another۔ غمز کا بنیادی مفہوم کسی چیز کی عیب جوئی کرتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ یا آنکھ سے اشارہ کرنا ہے۔ کچھ لنگوسٹکس جو ہیں ان کے نزدیک اس کے معنی کسی کے کمزور پہلو کی طرف آنکھ یا ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے۔ اب ان آیات میں مجرموں کی کچھ جو ناپسندیدہ حرکات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ وہ جب بھی اہل ایمان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے کہ دیکھو یہ لوگ کس بھول میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جب اپنے اہل و عیال اور اپنے ہم خیال لوگوں کے پاس جاتے تو یہ کہتے بھئی یہ لوگ تو بالکل ہی بہک گئے ہیں، پتہ نہیں کیا عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھو کیسی کوئی غلط رائے ان لوگوں نے پکڑ لی ہے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اور وہ نہیں بھیجے گے ان پہ کوئی بطور محافظ۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے ہنس رہے ہیں کفار پہ۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسندوں پہ بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہیں۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو کیا ثواب پا لیا کفار نے جو افعال وہ کرتے رہے ہیں۔ حافظین، نگران، کو گارڈز، ثُوِّبَ صوب سے بنا، بازیابی، نتیجہ خیزی، اور انگلش میں آپ کہیں گے ریکوری۔ اب یہ وہ لفظ ہے جس پہ ہمیں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ثواب کا لفظ ہمارے معاشرے میں ہے وہ اس کا روٹ ثوب ہے، اور ہم عام طور پہ ثواب سے مراد ایک اچھا ریٹرن، اگر ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی کام اچھا کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا اچھا ریٹرن ملے گا، لیکن یہ مفہوم صحیح نہیں ہے، اس میں کمی ہے۔ ثواب کا اپنا میننگ نتیجہ خیزی ہے، کسی بھی عمل کا آؤٹ کم یا رزلٹ، یا کرنے کے بدلے جو کچھ حاصل ہوگا۔ اس لیے اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ چلے جانے کے بعد پھر لوٹ آنا ہے، یا پھر جو توانائی آپ نے کسی کام میں صرف کی تھی اس توانائی کا بحال ہو جانا بھی ثواب ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ جسمانی توانائی، وقت اور ذہنی صلاحیتیں صرف ہوتی ہیں۔ اب اگر وہ کام بیکار جائے تو یہ ساری ایفرٹس، یہ ساری توانائیاں ضائع چلی جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ کام کو نتیجہ خیز ہے تو جو آپ نے یہ ایفرٹ کی اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ برآمد ہو، اور یہ نتیجہ جو برآمد ہوتا ہے اس کا نام ہے ثواب۔ مثلا اگر آپ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ اچھی صحت۔ تو آپ نے جو ورزش کی اس کا ثواب آپ کو اچھی صحت کی صورت میں ملتا ہے۔ اب اس سے جو ایک طرز نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو اعمال کا نتیجہ ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کے عمل اچھے تو اس کا ثواب اچھا، اور اگر آپ کے عمل برے تو پھر اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی۔ قرآن کریم میں ثواب آخرہ اس کی ٹرم بھی استعمال کی ہے اور ثواب دنیا کی ٹرمنالوجی بھی استعمال کی ہے۔
اب ثواب آخرت سے مراد وہ بازیابی، وہ واپسی یا وہ انجام کار ہے جو زندگی کے اگلے مرحلے میں ہمیں ملے گا، جبکہ ثواب دنیا سے مراد یہ ہے کہ اسی دنیا کی زندگی میں جو نتیجہ خیزی یا ایک بازیابی جو ہے وہ ہو۔ یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اسی کی طرف لوٹ کے آتا ہے، اور اسی لوٹ کے آنے کا نام ثواب ہے۔ اس لحاظ سے جو آیت نمبر 36 ہے، حل صوبے بالکفارو ما کانو یفعلون، اب خود دے سکتے ہیں کہ یہاں تو ثواب کا لفظ کافروں کے ساتھ استعمال کیا گیا، تو مفہوم کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا، کفار کے اعمال ہی بدلہ بن کے ان کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وسلم۔